और बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर अंकित भादु मारा गया है। पंजाब के जीरकपुर में यह एनकाउंटर हुआ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट से भादु की मुठभेड़ हुई। अंकित भादु के 2 साथियों को भी गोली लगी है। अंकित भादु पर 1 लाख का इनाम था। और चलिए एक बार इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता रवि विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि, पंजाब पुलिस द्वारा आज जो ऑर्गेनाइज फोर्स है उसके द्वारा आज ये एनकाउंटर किया गया, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह से उनके पास क्या कुछ खबर थी इस गैंगस्टर को लेकर, किस तरह से वो वहां पर पहुंचे, किस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया? बिल्कुल अनीता, अंकित भादु जो कि न केवल राजस्थान यानी उत्तरी राजस्थान और पंजाब और हरियाणा यहाँ पर एक आतंक का पर्याय बन चुका था और राजस्थान पुलिस के साथ साथ पंजाब और हरियाणा पुलिस की स्पेशल टुकड़ियां इसे लगातार खोज रही थी। इसका एनकाउंटर या इसको जिंदा पकड़ने के प्रयास जो थे वो पिछले 1 साल से चल रहे हैं और इसकी आज इसका बानगी जिनकपुर में देखी गई, जहां पर पंजाब की स्पेशल पुलिस के द्वारा पहले इसको अंकित भादु को घेरा गया, इसको चेतावनी दी गई, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु चूंकि शातिर अपराधी है इसने पुलिस पर फायर किया और उस फायरिंग में अंकित भादु ढेर हो गया। इससे पहले बीते वर्ष भी अंकित भादु ने राजस्थान पुलिस पर यानी श्रीगंगानगर पुलिस पर फायरिंग की थी। सादुल शहर के पास में मुठभेड़ हुई थी जहां पर इंस्पेक्टर नरेंद्र पूनिया, जिनको की जिम्मा था अंकित भादु को पकड़ने का, वो बाल बचे थे, उनकी टीम बाल बची थी और ये फरार हो गया था। उसके बाद से लगातार तीनों राज्यों की पुलिस जो है अंकित भादु को ढूंढ रही थी। इस पर 15 मामले जो है पिछले वर्ष में दर्ज हुए हैं। लॉरेंस विश्नोई गैंग का ये राइट हैंड माना जाता था और आनंदपाल का खात्मे के बाद, आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद अंकित भादु और इसकी गैंग की दहशत काफी इस इलाके में बढ़ गई थी। अनीता, संपत नेहरा जो कि अंकित भादु का एक दोस्त था, उसको पिछले वर्ष पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और उसके बाद से अंकित भादु की तलाश लगातार यहाँ पर जारी थी। राजस्थान ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਬੋਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਫਲੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਫੋਰਸਿਬਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲੈਟ 'ਚੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਹੌਸਟੇਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬੈਲਕਨੀ 'ਚ ਲਿਆਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬੈਲਕਨੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ DSP ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ASI ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪੱਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਇਹਦੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਬੱਚੀ ਆਊਟ ਆਫ ਰੇਂਜਰ ਹੈ। ਨੇ 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, 2 ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਿੰਦਾ ਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿੰਦਾ ਕਾਣਾ ਲਖਵਿੰਦਰ। ਜਰਮਨਜੀਤ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ? ਇਹ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 6 ਸਾਲ ਅਕਸ਼ਿਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਉਸਨੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ। 6 ਇਅਰਸ ਓਲਡ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਸ਼ਿਤਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ ਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਰਾਊਂਡ 6 ਵਜੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰਾ ਇਹ? ਜਦੋਂ 6:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਬਾਊਟ 15-20 ਮਿੰਟਸ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ
ਤਕਰੀਬਨ 35 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਲਵਰਸ ਨੇ, ਰਿਵਾਲਵਰਸ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਡਿਟੇਲਸ ਵੈਪਨ ਦੇ ਉਸ ਬਚਦੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਓਕੂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਿੰਦਾ ਕਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਰਮਨਜੀਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਕਸ਼ਰ 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਦਰਜ ਇਹਦੇ ਤੇ? 20-22 ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਰਿਪੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਸਰ? ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹਨੇ? ਕਾਫੀ ਹੀਨਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗਸ, ਖੋਹਾਂ ਬਥੇਰੀ। ਸਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ? नहीं हले नहीं, बाकी थैंक यू। रहने वाले कित्थों दे जेडे दो बंदे? तो सुना अपने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो अधिकारी थे, उनका क्या कुछ कहना था कि किस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। हालांकि इसमें जिस बच्ची को हॉस्टेज बनाया गया था उसे भी अस्पताल ले जाया गया, उसे भी गोली लगी है। और यहाँ पर अंकित भादु का एनकाउंटर हुआ है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के साथ उसकी मुठभेड़ हुई थी और उसके साथ 2 साथियों को भी गोली लगी है। चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राकेश गुसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश, हालांकि जब पिछले साल की 2018 में जब यहाँ पर अंकित भादु श्रीगंगानगर पुलिस को गच्चा देकर निकल गया था, बड़ी कोशिशें यहाँ पर की गई थी कि किसी तरह से भी उसको पकड़ लिया जाए, और उसके बाद आज ही उस पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। लेकिन आज यहाँ पर मुठभेड़ हुई है और उसमें ये मारा गया है, 2 साथी भी उसके साथ बताए जा रहे हैं। बड़ी उपलब्धि पंजाब पुलिस की कही जाएगी, लेकिन यहाँ पर राजस्थान को भी राहत होगी कि आतंक के एक दूसरे पर्याय का आज यहाँ पर खात्मा हो गया है। मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया कि आनंदपाल की मौत के बाद में एक वैक्यूम राजस्थान के अंदर क्रिएट हुआ और उसको भरने के लिए लॉरेंस बिश्नोई हो, अंकित भादु हो या संपत नेहरा हो, ये जो कुछ नाम है, कुछ बड़े नाम है जो कि राजस्थान का वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे। यही कारण है समय समय पे इन्होंने राजस्थान में न केवल आए, अब ऑर्गेनाइज क्राइम तो चलिए राकेश, आपसे हम बात करेंगे। हम दर्शकों को यहां पर बता दें कि 23 मई 2018 को हिस्ट्री शीटर जॉर्डन चौधरी की हत्या के बाद ये अंकित अंकित भादु जो है वो फरार था। इसे लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। हालांकि पंजाब और हरियाणा पुलिस की भी मदद ली जा रही थी, लेकिन ये राजस्थान पुलिस को गच्चा देने में कामयाब रहा। लेकिन आज पंजाब के जीरकपुर में एनकाउंटर हुआ और मारा गया। एनकाउंटर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕੂ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਕਿਤ ਬਾਦੂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਗੁਰਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਤੋਂ 22 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਨਪੱਟੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਸੀਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਛਾਵਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 6:30-7 ਵਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ
ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਕਿਤ ਭਾਦੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तो आपने यहाँ पर सुना चंडीगढ़ से हमारे जो संवाददाता उनका क्या कुछ कहना है, जो वहां पर मौजूद है, जिस बिल्डिंग में, जिस अपार्टमेंट में ये एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है वहां पर वो मौजूद थे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि सेकंड फ्लोर पे ये अंकित भादू अपने 2 साथियों के साथ मौजूद था और उसके बाद उसने भागने की वहां से कोशिश करी और फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले परिवार को हॉस्टेज बनाया गया। और चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी राकेश मित्वा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। राकेश, जहां पर श्रीगंगानगर पुलिस तो शायद अंकित भादू को नहीं पकड़ पाई थी, जॉर्डन चौधरी के मर्डर के बाद वो वहां से फरार था। हालांकि पूरा का पूरा जखीरा पुलिस का वहां पर पहुंचा था कि अंकित भादू को पकड़ा जा सके, लेकिन वो गच्चा देकर पंजाब भाग गया। पंजाब और हरियाणा की पुलिस भी उसे तलाश रही थी, संयुक्त ऑपरेशन भी किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार आज उसे खत्म कर दिया गया। निश्चित रूप से श्रीगंगानगर की पुलिस को काफी राहत मिली है, क्योंकि श्रीगंगानगर के जो कई लोग हैं वो उनसे काफी त्रस्त थे। पिछले ही दिनों में गैंगस्टर ये अंकित भादू और इसके साथ ही सतपाल जो नेहरा है उसकी ओर से यहाँ के लोगों को फिरौती के लिए काफी धमकियां भी आ रही थी। यहाँ एसडी कॉलेज है, वहाँ के जो प्रमुख है सिर्फ रात को हंगामा करते थे, हमें तभी पता चलता था किस टाइम होते। तो कितने टाइम से रह रहे थे यहाँ पे ये करीब मेरे ख्याल से 3-4 महीने से ही रह रहे होंगे, क्योंकि हमें 1.5 महीने पहले यहाँ पे शरारत करे थे, तब मैंने उनको बोला था भाई यहाँ पे शरारत मत करो। अच्छा हाँ। तो कितने लोग थे यहाँ पे जो रह रहे थे कुल? ये कभी 2 आ जाते, कभी 4 आ जाते, आते जाते दिखते थे वो सिर्फ। अच्छा हाँ भाई कितने बंदे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं सिर्फ वो दिखते थे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते थे, रात को ज्यादा आते थे या दिन में? नहीं, रात को ही दिखते थे ज्यादातर यहाँ पे। अच्छा हाँ। तो और कुछ कोई लेडीज भी आती थी साथ में या सिर्फ जेंट्स? नहीं, लेडीज तो नहीं कभी दिखी, बस रात को यही आते थे। अच्छा हाँ। तो शराब वगैरह पी के हंगामा वगैरह बहुत पी के बहुत हंगामा करते थे यहाँ पे। कंप्लेंट भी की थी हमने यहाँ पे, कई बंदों को हमने सोसाइटी वालों ने इकट्ठा हो गया, हमने उनको बोला भी था भाई यहाँ पे शराब वगैरह मत पियो और हंगामा मत करो, रात को पी के हंगामा कर देते थे। कई बार हमने कंप्लेंट भी की थी। पुलिस को आपने कंप्लेंट करी, पुलिस आई यहाँ? नहीं, पुलिस को नहीं, हमने सोसाइटी वालों ने जाके उनको बोल दिया था भाई ऐसे हंगामा मत करो। फिर उसके बाद थोड़ा इस चीज़ पे इफेक्ट पड़ा था। ये मेरे ख्याल से 4-5 बिल्कुल गौरव, जो यहाँ पर ये पड़ोसी हैं इन्होंने बताया कि हंगामा भी करते थे और हालांकि सोसाइटी और भी क्या बाइक पे और इन्फॉर्मेशन नहीं ये ऊपर ही रहते थे, इनको ज्यादा पता है, लेकिन वो हमने भी देखा पल्सर बाइक के वो आते थे बाइक के ऊपर दोनों। गाड़ी यूज नहीं करते थे, सिर्फ बाइक वगैरह? गाड़ी कभी कभी आई थी, कभी कभी आती थी गाड़ी। तो मतलब कभी 2 कभी 3 कभी 4? बिल्कुल। तो काफी हंगामा वगैरह भी करते थे जैसे आपने? हाँ, हंगामा बहुत करते थे यहाँ पे, रात को पी के हंगामा बहुत करते थे। अच्छा। तो बिल्कुल गौरव, जैसे ये पड़ोसी हैं बिल्कुल इनके साथ में ही रहने वाले हैं, और जैसे इन्होंने बताया न्यूज़ 18 टीम को कि किस तरह से वो यहाँ पर शराब पीकर जो है हंगामा करते थे, हुल्लड़बाजी करते थे। कई बार इनको समझाया भी है, सोसाइटी में इन्होंने कंप्लेंट भी करी, सोसाइटी के लोगों ने इनको आकर भी समझाया है। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि उसके बाद भी किसी भी तरह से किसी को भी भनक तक नहीं लगी कि ये वही अंकित भादू, ये वही बड़ा नामी गैंगस्टर जो यहाँ पर रह रहा था, जो हंगामा यहाँ पर कर रहा था, जो शराब पी के अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर हुल्लड़बाजी कर रहा था, वो एक सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नामी गैंगस्टर जो है वो था अंकित दादू और उसके जो साथी थे। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि वो एक नामी गैंगस्टर है, उसके पास वेपन है। लेकिन आज जब पुलिस ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर उसको अरेस्ट करने आई तो वो नीचे से कूदकर, बालकनी से कूदकर वो फर्स्ट फ्लोर पर आया। फर्स्ट फ्लोर पर जो फैमिली रह रही थी उनकी 6 साल की बच्ची को के उस पर सर पर कनपट्टी पर जो है वो पिस्टल लगाई और पुलिस वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसको जाने नहीं दिया तो उसको, बच्ची को वो जान से मार देगा। जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई, पीछे से कमांडोज ने उसको पकड़ा, धक्का दिया, उसके बाद उसकी पट पे पहले गोली मारी गई, उसके बाद उसको
जो है इनकाउंटर किया, उसके बाद उस बच्ची को छुड़वाया। हालांकि बच्ची को भी चोट जो है वो काफ़ी लगी है, जो बताया जा रहा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसके बाद उसके जो 2 साथी थे वो काफ़ी देर अंदर छुपे रहे, उनको भी वार्निंग दी गई क्योंकि उनके पास भी जो है वेपन थे उनके पास भी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो पड़ोसियों ने खुलासा किया है कि लगातार वो हुल्लड़बाजी करते थे, लगातार कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और भी लोग यहाँ पर आ जा रहे थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उसके बावजूद भी है एक पुलिस पर लापरवाही की वाली बात कि उसके बाद भी पुलिस ने किसी तरह का कोई एक्शन लिया, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि कई बार इन्होंने मनोज, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा और अपडेट के लिए क्या कुछ इस समय चल रहा है वहां पर वो भी जानने की कोशिश करेंगे तस्वीरों के जरिए। सीधा रुक करते हैं इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मेरे सहयोगी पंचकुला से इस पूरे घटनाक्रम पर वो भी नजर बनाए हुए हैं, वो भी मौके वारदात पर पहुंचे हैं और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तारा ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। तारा, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में अभी तक? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक की जानकारी आई है। जो लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग के 3 गैंगस्टर जो है पीर मुसल्ला के लक्ष्मी अपार्टमेंट में छुपे थे, और जो है पंचकुला पुलिस और जो पुलिस है उनका जो ज्वाइंट ऑपरेशन द्वारा जो है एक जो है गैंगस्टर को मारा गया है, जिसका जो नाम अंकित भादु बताया जा रहा है। और जो अन्य जो कार्रवाई है इस मामले को लेकर अभी फिलहाल जो पुलिस है जिस लड़की को पर किया गया था ऊपर जो उससे पूछताछ कर रहे हैं, और वो जो पुलिस अधिकारी है वो मौके पर अभी मौजूद है। मौके पर मौजूद हैं। मनोज का एक बार फिर से रुक करेंगे। मनोज, ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, राजस्थान का गैंगस्टर पंजाब में छिपा हुआ था या फिर पंजाब पुलिस की तरफ से अकेले ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है? क्या इंफॉर्मेशन थी पंजाब पुलिस के पास, राजस्थान से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास? हेड हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन मीडिया को दी है कि उनके पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। विक्रम बराड़ जिन्होंने विक्की गाउंडर का इनकाउंटर किया था, उनके पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि जो अंकित बादू है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नामी गैंगस्टर है, गुर्गा है, वो यहाँ पर छुपा हुआ है। जिसके बाद एक पूरी टीम जो है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट वो तैयार की गई, और उसके बाद इनका, क्योंकि इन्होंने जो बताया है कि एक पंजाब पुलिस का ही ऑपरेशन था एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर, और ये पूरी टीम जो है वो तैयार करके करीब 6:30-7 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी जगह जाकर पूरे एरिया को जो है वो सील किया गया। पहले सील करने के बाद जो अधिकारी थे, जो विक्रम बराड़ हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि विक्रम बराड़ ने ही उस पर गोलियां चलाई, विक्रम बराड़ जो है इसी रास्ते जो है वो चले। हालांकि कोशिश जो है वो यहाँ पर उन्होंने की, दरवाजा जब खटखटाया लेकिन दरवाजा उसने नहीं खोला, जिसके बाद दरवाजा तोड़ने की बात की गई, लेकिन वो पीछे से जो है वो भागने के बालकनी में जो है घुसा, नीचे की उसमें आया, और नीचे के आके उसने पड़ोसियों को, जो उनके पड़ोसी थे, जो फैमिली थी, उनको आकर जो है उसके कनपट्टी पर, क्योंकि उसके बाद जो बताया जा रहा है कि वेपन जो है उनके पास काफ़ी संख्या में उनके पास वेपन भी थे। जो उनके साथी हैं जिनको राउंड अप किया गया है वो भी, उनको भी राउंड अप करके पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो पड़ोसियों ने बताया कि किस तरह से वो हुल्लड़बाजी करते थे, किसी का भी डर नहीं था, आराम से यहाँ पर शराब पीकर हुल्लड़बाजी करना, देर देर रात तक 2-2, 3-3 बजे तक हुल्लड़बाजी करना। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जब पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि पूरी पेट्रोलिंग की जाती है, वेरिफिकेशन जो है वो की जाती है, मकान मालिक से पूरी तरह से एक किराएदार की वेरिफिकेशन ली जाती है, लेकिन आखिर ये इतने टाइम से यहाँ रह रहे थे, इनकी वेरिफिकेशन को जो है वो क्यों नहीं ली गई? एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि एक नामी गैंगस्टर जो राजस्थान में 1 लाख का जिस पर इनाम है, 22 से 25 केसेस जो है उसके ऊपर जो है वो दर्ज है, शार्प शूटर है, और पंजाब पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया है। तो पुलिस ने आखिर, जो यहाँ पर जो लोकल पुलिस थी, उसने आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया? ये एक बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखता है। क्योंकि अब जो अगर हम बात करें, कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, कैमरामैन को कहूंगा कि जो पूरा एरिया है, हालांकि ये पूरा एरिया जो है वो सील कर दिया गया है पूरी तरह से। ये सोसाइटी है, काफी बड़ी सोसाइटी है, 2007 से ये सोसाइटी है, पूरी तरह से ये जो एरिया है वो सील कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो डर का माहौल जरूर है, देखा जा रहा है, क्योंकि पूरा एरिया जो है, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, रिहायशी एरिया है, वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसमें लोगों में एक डर का माहौल, क्योंकि जब जानकारी मिली कि एक गैंगस्टर, जो नामी गैंगस्टर यहाँ पर छुपा हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोग जो है सदमे यहाँ पर इसमें काफी डर के माहौल में है, क्योंकि एक गैंगस्टर यहाँ पर छुपा होना एक बड़ी बात है, और उसके पास वेपन जो है वो भी जो है वो मिले गए हैं। लेकिन अब पुलिस जो है वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि उसको इनकाउंटर जो है वो कर दिया गया है, उसके 2 गोलियां पट पे जो है वो लगी थी, बच्ची को भी जो है इंजरी हुई थी, जिसको हॉस्पिटल लेके गया है। एएसआई सुखविंदर सिंह, जो कि इस पूरी टीम में जो है शामिल थे, इस पूरे इनकाउंटर में शामिल थे, उनको भी गोली लगी है, उनको भी हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया है। लेकिन सबसे गौरव हैरानी की बात यह है कि इस तरह का जो नामी गैंगस्टर है अंकित बादू, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का खास जो है वो गुर्गा माना जाता है। जी मनोज।
ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से एनकाउंटर किया गया गैंगस्टर अंकित भादु का। पंजाब के जीरकपुर में यह एनकाउंटर हुआ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। उसके 2 साथियों को भी गोली लगी है और अंकित भादु पर 1 लाख रुपए का इनाम था। अगर आपको याद हो तो अगस्त 2018 में जॉर्डन चौधरी, जो कि श्रीगंगानगर का हिस्ट्री शीटर है, उसका मर्डर करने के बाद अंकित और उसके 2 साथी फरार हो गए थे और उसके बाद कई कोशिशें यहां पर की गई कि उसे पकड़ लिया जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई और आज उसकी मुठभेड़ हुई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट पंजाब के साथ जीरकपुर के पास और ये एनकाउंटर हुआ और अंकित भादु उस एनकाउंटर में मारा गया। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।